چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازا ہے تجھ پہ رحمت داری کا خطاب، تم تو آئے بھر میں سویرا کر دیا، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا آپ نے، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، رحمت للعالمین کے اس عالم میں ظہور کا دن، گلی گلی شہر شہر رنگ و نور کی بہار، ملک بھر میں محافل نعت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری، فضائیں درود و سلام سے معطر، رب نے اپنے فضل سے پیدا وہ محسن کر دیا جس نے ظلمت کدے میں آتے ہی دن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر و شرک کے اندھیروں سے ایمان و توحید کے اجالے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضابطہ اخلاق ترغیب نہ دیا ہو۔ حق کے شفاعت کا جن کو ملا وہ نبی، جن کو قرآن حاصل ہوا وہ نبی، ملتی ہے جن پہ ہر ایک دوا وہ نبی، ہیں فراز اپنے حاجت روا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن، شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، ملتان کی گلیاں بازار اور مساجد گلی آرائش اشیاء اور برقی کمکموں سے سج گئی ہیں۔ جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملتان کے شہریوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ شہر بھر میں لگے ڈیکوریشن کے سامان کے سٹالز پر شہریوں کا رش دیکھنے کے قابل ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم ربیع الاول کا مہینہ جوش و جذبے اور احترام سے مناتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں۔ گلی محلے جھنڈیوں اور دیگر آرائشی اشیاء سے سج گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے اہم سرکاری اور نجی عمارتوں، مساجد اور گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ایمانی دیدنی ہے اور تیاریاں آخری وقت تک جاری رہیں گی۔ ساتھی رپورٹر فراز رمضان اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سلمان ضمیر، ملتان۔ سونا آیات سج گئے نے گلیاں بازار، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی باسعادت گھڑی آ گئے۔ اشاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانے کے لیے پرجوش ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں گھروں، گلیوں، عمارتوں اور مساجد کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ رات بھر محافل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میاں والی میں جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہریوں کا سٹالز پر رش بڑھ گیا، بازاروں میں نالین مبارک کے پرچموں کی بہار آ گئی۔ شہری کہتے ہیں گھروں کی سجاوٹ کے لیے نالین مبارک کے پرچم خریدے ہیں، گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوس میں بھی شرکت کریں گے۔ عیسیٰ خیل میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں ختمی مرحلے میں پہنچ گئی۔ سٹالز پر شہری جھنڈے، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز وغیرہ خریدنے آئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ سرکار کا جشن ولادت باسعادت بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ حاصل پور میں بھی شہری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ شہری بازاروں میں آرائشی سامان کی خریداری میں مصروف ہیں۔ نعت خواں حضرات کا کہنا ہے کہ سرکار کی آمد کا جشن مذہبی جوش و جذبے سے منائیں گے۔ سرور دو جہاں کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہاڑی میں بھی عید میلاد النبی پر شہر کی گلیوں، بازاروں اور مسجدوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد بازاروں میں جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز خریدنے میں مصروف رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ دن بڑی برکتوں والا ہے۔ ہمارا بچہ 12 ربیع الاول کی خوشیاں منا رہا ہے۔
दूसरी तरफ कोटद्दू में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर चौक चौराहों और इमारतों को सजाने का सिलसिला जारी है। रेलवे चौक पर लाइटनिंग का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। रियाज अहमद ठेकेदार के मुताबिक 2000 लड़ियां लाइटिंग के लिए लगा दी गई हैं। रात को लाइटिंग चालू करके नात ख्वानी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोधरा के बाजार, इमारतें और मसाजिद भी रंग बिरंगे कमकमों से सजा दी गई हैं। दरिया चनाब, सतलुज और रावी तीनों दरियाओं के सैलाबी रैले तबाही फैलाते जनूबी पंजाब में आगे बढ़ रहे हैं। चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल बरकरार रहने का खदशा, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। इस वक्त दरियाओं की क्या सूरत हाल है, एक नजर इस रिपोर्ट पर। भारतीय डैम्स में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पोंग डैम पर पानी की सतह 1394 फुट हो गई। भाखड़ा डैम में पानी की सतह 1000 फुट तक पहुंच गई, जबकि हरीके हेडवर्क्स पर पानी की आमद 3,47,500 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक से भी तजावज कर गया और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सोलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,41,984 क्यूसेक और अखराज भी 1,41,984 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ और अखराज भी 1,02,045 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेल्सी साइफन पर पानी का बहाव 97,471 क्यूसेक से भी तजावज कर गया, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 11.50 फुट तक पहुंच गई और हेड पाइनर पर पानी का बहाव 3,10,479 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि अखराज भी 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरियाए चिनाब और सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोदियाना, रूही, बहावलपुर। चनाब की बिफरी मौजों ने हर तरफ तबाही मचा दी। रंगपुर में दरिया कई एकड़ पर फिश फार्म भी बहा ले गया। मुजफ्फरगढ़ में पानी के दबाव में कमी, चंद घंटों में पानी मजीद कम होने का इम्कान है। उधर शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, उच्च शरीफ और तरंडा मोहम्मद पनाह में पानी के बहाव में इजाफा। मुतादिद मौसरजात और बस्तियां, सिरिया, फसलें और घर सब दरिया के नसर हो गए। इंतजामिया हाई अलर्ट, मुतासर इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। रंगपुर में चिनाब की बिफरी मौजों ने तबाही मचा दी। फसलें और घर सब दरिया की नजर हो गए। दरिया कई एकड़ पर फिश फार्म भी बहा ले गया। फार्मर अजहर अब्बास का कहना था कि सैलाब से फिश फार्मर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 20,000 रुपए मन वाली मछली 5,000 रुपए मन में फरोख्त कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर भी दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जिले इंतजामिया के मुताबिक बस्ती दोआबा और बस्ती संकी के मकाम पर पानी के दबाव में कमी हुई है। चंद घंटों में पानी मजीद कम हो जाएगा। मकामी अफराद का कहना था कि बस्ती दोआबा में पानी जल्द उतर जाएगा क्योंकि ये बेट का इलाका है। उधर शुजाबाद में दरियाए चिनाब के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक मौजा मौसम में जमींदारा बंद टूटने से आबादियां पानी की जद में आ गई हैं। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब से घर गिरने लगे हैं, हुकूमत इमदाद करे। दूसरी जानब जलालपुर पीरवाला के मकाम पर चिनाब की तबाहकारियां जारी। पानी बस्तियों में गैर मामूली हद तक बढ़ गया। सैलाबी पानी नवाही इलाका बस्ती फिरानी के सैलाबी हिफाजती बंद से टकरा गया। सैलाबी रेला टिब्बी, सहराब, खान बेला और दीगर करीबी इलाकों की जानिब गामजन। मुताद्दिद मकामी जमींदारा हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी पानी से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 52 मौजाजात मुतासिर होने का खदशा। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल संगीन होने पर हाई अलर्ट, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जबकि उच्च शरीफ में मौजा बुख्तियारी का जमींदारा बंद टूटने से कसमानी, आगरानी, पोनी और गढ़ा समेत मुतादिद बस्तियां मुतासर। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। उधर सैलाबी रेलों की आमद से हेड पाइनर पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। मौजा बुख्तियारी, मक्खन बेला समेत मुतादिद जमींदारा बंद टूट गए। बस्ती दोली, बस्ती अजीज, मखड़ाली, बस्ती गरानी, मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। तेज बहाव के बायस पाइनत कैनाल, अब्बासिया कैनाल और अब्बासिया लिंक कैनाल बंद कर दी गई। इंतजामिया हाई अलर्ट, सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में दरियाए चिनाब का सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होने लगा। फसलें, जानवरों का चारा और घर सब पानी में डूब गए। बस्ती अजीम बख्श नहाया में भी हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर, रास्ते मुनक़ते हो गए। मकीनों का कहना था कि चारा नहीं है, जानवर भूखे मर रहे हैं, इंतजामिया मदद करे। मैक्लोडगंज से उच्च शरीफ तक दरिया सतलुज की तबाहकारियां। पानी का बहाव बढ़ने से कई हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई। मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलियत फ्राहम नहीं की गई। बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मिंशनाबाद में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। चक भूंगा चकूका सैलाबी पानी में डूब गया। लहलहाती फसलें ज़ेर आब, जानवरों का चारा नायाब हो गया। मुतासरीन कहते हैं इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। भूख प्यास से बुरा हाल है।
हमारे घर हैं वो रुड़ गए हैं, कुछ नहीं बचा। जो बच्चे हैं वो हमारे रोड पर हैं। गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई तोफ़ुज़ नहीं किया, कोई रेस्क्यू नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। माल जान सब हमारा लूट गया है, कुछ नहीं बचा। सतलुज की बेकाबू मौजों ने कहरोड पक्का और गिरदो नवाह में भी तबाही मचा दी। रहीम कली बंद टूटने से मुताद्दद बस्तियां पानी की लपेट में, घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। सैलाबी पानी से बड़े पैमाने पर फसलें दरियाबुर्द, शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। माल मवेशी लुटते मुड़ते कुछ बच गए, कोई मर खप गए, घर ढह गया, मर्जी कट्ठी बने आज तेल भी सारे तबाह थी गए, फसल मक्की सारी। मुबारकपुर में सतलुज के पानी में मजीद इजाफा सैलाबी सूरत हाल के बायस कोट धादू गिल्लू से झांगड़ा शर्की तक मुतअद्दिद रिहायशी आबादियां मुतासर, बड़े पैमाने पर फसलें तबाह, किसान परेशान। इंतजामिया से इमदाद की अपील। रामपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। मौजा नूरपुर में रियासती लुड्डन बकान वाला के बंद टूट गए, हजारों एकड़ फसलें जेरे आब आ गई, दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। भाई कोई आवेन साढ़े ट्रैक्टर किना बंदा दे खलेन किना दी कारां खलियन माल खलेन, कोई वो कड्ढन या कोई मदद करें, कोई ना कोई साढ़े नाल करें। इस तरीके से कोशिश नहीं कर सकते, हम बेड़ी तो नहीं निकल सकती है वो सारी शायद। हथेजी में झंडा मियानी का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी जेर आब, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कहते हैं सैलाबी पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। दरिया दे वड़दे बिल्कुल सारी जमीनें रकबई तकरीबन 80 बीघा सा मुस्ताजरी की बैठा से, उतना कपाह भी है साड़ी, मिर्च भी है साड़ी, मकई भी है। जिन्हें ताद दरिया दा बन जिमें दरिया इस साइड तो आंदा पी, कहीं सा कोई नहीं आख्या कि इथू चले वनो, या कोई इंतजामिया आंदे अलर्ट करें दे कि दरिया दे ज्यादा पानी आंदा पे पिछू तुसा इथू चले वनो। उज शरीफ में मौजा बुख्तियारी का जमींदारा बंद टूट और गड़ा समेत मुतअद्दिद बस्तियां पानी में डूब गईं। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन कहते हैं अपनी मदद आपके तहत बच्चों और माल मवेशियों के साथ नकल मकानी कर रहे हैं, इंतजामिया सहूलियात फराहम करे। तैयारी का ये मेन बंद है, ये टूट गया, जिसकी वजह से अपना बस्ती अगरानी, बस्ती पूणी, बस्ती कसमानी और बस्ती गुरड़ा ये शदीद नुकसान है फ्लड की वजह से हुआ है। लोग ये सामने किश्ती चल रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सैलाबी पानी में फंसे लोगों ने इंतजामिया से सहूलियात फराहम करने के साथ माली इमदाद फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावल नगर। दरिया रावी की तबाहकारियों में कमी ना आ सकी। कबीरवाला में पानी का तेज रैला निकासू से होता हुआ आबादियों में दाखिल होने लगा। मुतासरीन बंद और सड़कों पर इमदाद के मुंतजिर हैं। पानी की बेरहम मौजों से ओल्ड हेड सरनाई पुल के मुनहदम होने का खदशा है। उधर तलंबा में सैलाब मुतासरा फैमिली इमदाद के लिए दुआएं देने लगी। दरिया रावी के पानी की जद में आने वाली मुतासरा फैमिली बेयारो मददगार। मुतासरा खानदान मियां चन्नू के इलाका तुलंबा में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरा खातून का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें खेमा दिया जाए। सैलाबी पानी सब कुछ बहा कर ले गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जानवरों के लिए चारा तक नहीं। सानू कोई कैंप मिले जावन भाई, सारे निक्के निक्के बाल हैं, एक सानू मच्छर तंग कीते पे बालन बहु लड़दा ना, सारे को मंजियां ना, सारे को बिस्तर ना, सत भाई सिर्फ बच्चे लाते अपने आ गया। बच्चों ने जिंदगी बचाई, कोई दाना नहीं चाहे, कोई सामान नहीं वेख्या, ऐसा कुछ भी नहीं आंदा। कबीरवाला में भी दरिया रावी के सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। माई सफूरा से आने वाला पानी का तेज रेला नकासू से होता हुआ आबादियों में दाखिल होने लगा। मुश्किलात का शिकार मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। मुतासरीन बंद और सड़कों पर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मुतासरीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी से भी तंग है, मदद की जाए। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और दूसरी बात यह है कि हमारे पास खाने पीने की अशिया की किल्लत मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि अगर पानी खुदा न खास्ता कम भी हो जाए तो हमारे पास खसरा जैसी बीमारियों की वबा फैलेगी। इसमें हमारे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर वैक्सीन या उसकी जो मेडिसिन है वो मौजूद नहीं है। कबीरवाला में दरिया रावी की बेलगाम मौजों से ओल्ड हेड सिडनाई पुल के मुनहदम होने का खदशा। पुल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने का इम्कान है। पुल की बंदिश से कबीरवाला का जंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने का खदशा पैदा हो गया। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल में कमी आना शुरू हो गई। गेज की सतह कम होकर 13.55 फीट पर आ गई। दूसरी जानिब सिकंदरी नाला में भी पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। दरियाए चनाब में हेड मोहम्मद वाला पर सैलाब की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई। गेज 17 फुट की क्रिटिकल सतह से कम होकर 13.55 फुट पर आ गई। साथ ही साथ सिकंदरी नाला में भी पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। ताहम सैलाबी पानी अभी सिकंदरी नाला से मुल्हिका बख्शवाला, खज्जीवाला और खोर सांजरी वाहन की आबादियों में मौजूद है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की कमी के बावजूद झोंकवैंस, लकवाला, बंदबोसन, इनायतपुर महोटा समेत दीगर मौजाजात शदीद सैलाब की लपेट में हैं, जिससे वहां शदीद नुकसान का अंदेशा है।
जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाए चनाब में सैलाबी पानी की सतह आइंदा 12 घंटों में मजीद कम होने का इम्कान है, जिससे हिफाजती बंदों और पुश्तों पर पानी का दबाव भी बतदरीज कम हो जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सैयद जुहैब बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में दरियाए चनाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। सैलाबी रैले ने अब तक मुल्तान के 140 मवासे जात को डबो दिया है। हेड मोहम्मद वाला बंद और शेरशाह बंद के अतराफ में पानी ही पानी है। सैलाब से होने वाले नुकसानात और उठाए जाने वाले इकदामात के हवाले से देखते हैं गोहर रहमान शेख की ये रिपोर्ट। फ्रांस में जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बाईस अब तक के अंदाजे के मुताबिक 39 लाख से जायद लोग मुतासिर। 13 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा सैलाब की जद में आ चुका है। जनूबी पंजाब की तीनों डिवीजन भावलपुर, मुल्तान और डीजी खान में दरिया बिखरे हुए हैं। ये जो बस्ती है यहाँ उम्मीद भी नहीं थी इस तरह पानी आ जाएगा, और अब ना घर रहा, ना जमा पूंजी रही, ना फसल रही, और इस वक्त खुले आसमान के नीचे जो है टेंट जो दिया गया है उस पर जो है हम बैठे हैं, अपना कुछ सामान ले आए हैं और कुछ सामान जो है वो पानी में बह चुका है। काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इस सैलाब ने जो है हमें बहुत परेशान कर दिया। दरियाई चनाब से उठने वाले सैलाबी रेले ने 140 मौजा जात को डुबो दिया। दर्जनों मकानात जमी बोस हो गए। कासिम बेला, हमरूट, बस्ती लंगड़ियाल, राजापुर, अकबरपुर, बस्ती सियाल, बस्ती वेंस, बस्ती लकवाला, बंदबोसन, शाह टाउन, शेरशाह, सूरज बयानी, गरेवाला पूरे तरीके से सैलाबी पानी की जद में आ गए हैं। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर पानी रेड लाइन को छू रहा है। हम ना रात गए से कोशिश कर रहे हैं सामान निकालने की, अभी भी हमारे बच्चे उधर फंसे हुए हैं और मैं यहाँ पर कश्ती वाले के पास आया हूँ। मैंने कहा यार उधर चलो, मेरी सिस्टर का घर है, वो बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि वहाँ से यहाँ से ना हमें निकाल जाओ, ठीक है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक दो कश्ती वाले को फ़ोन भी कर रहा है, वो अभी जो है और निकाल रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं। उनका वो जो घर था ना बहुत ऊंचा था और इस हद लेवल का पानी पहुंच गया ना, उनको इतना यकीन ही नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक डिवीजन भर में 90 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों और 6 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुल्तान के 2 अहम हॉटस्पॉट एरिया जिनमें हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बाईपास पर अब तक दर्जनों देहात सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। असल तखमीना तो सैलाबी पानी के ढलने के बाद ही लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान।